So today we will be learning about functions and lambda functions. Okay, so let's begin. So what do we understand by a term function here? Functions are nothing just a block of code which can be used repeatedly. Okay, which can be called repeatedly. So the reason behind the functions were created, like people had to write the code repeatedly in them. So functions were created so that we could write that particular code instead of writing them again and again in separate lines. We could write them once, and instead whenever we require them we can call them in the main program directly. Okay, so what is a function? A block of code means a group of statements here, okay, which runs only when it is called. Okay, we can pass data through it through known as parameters or arguments into a function, and a function may or may not, here can it says, but it may or may not, it depends whether we are writing the return statement or not. It may or may not return the data as a result. Like for some data structure that we have studied yesterday, for tuples it always returns the result for tuples and lists, but for strings, if you try to alter the string within a function, it never returns the, if you are not writing the return statement, the original string will be returned itself. The original string will be retained in the main function. Like what I am saying, I am just explaining it again. Suppose you are passing a list in a data structure, sorry, in a function, and what function is doing? Function is adding two more elements to the data structure or to the list itself. Let's say the list is an example here. And what is your did? You printed the list once in the function loop. You did not use the return statement. Okay, remember, you did not use the return statement. You printed the list after appending. You printed the list once in the loop, and you printed the list after the function has completed execution. So what happens in that condition? The list that was appended inside the loop, it was retained automatically without the use of return statement. Without the use, okay, remember, without the use of return statement, whatever kind of operation we did to the list inside the function, it was automatically reflected in the main list, the list that was present outside the function. Okay, but when we did the same thing with a string, the string did not reflect such changes that were made inside the function. Okay, so a function may or may not return the data as a result. Okay, so this should be, remember that this is an important point. Not can, a function may or may not return the data as a result. It depends upon the function, what are we writing and what kind of sequence data type are we using. Okay, so how to create a function in Python? Using the def keyword, then function name here. If you are passing a parameters, it should be placed in the parenthesis, otherwise an empty set of parentheses here, empty pair of parentheses, opening and closing parentheses, and a colon, and indentations, maintaining an indentation space. You have to write all the block of code that you want to be executed inside the function whenever the function is being called. Okay, so how to call the function? Simply just write the function name and give the arguments as necessary. Okay, like here we do not give an argument, so we are write an empty set of parentheses here. Is it clear till here? Function introduction, is it clear to everyone about the function introduction? Or still having any doubts on the function introduction part? Hello, is it clear on function introduction? Yes, sir. Okay, so let's move to the next topic now. Arguments. What are arguments? Arguments are nothing just the variables which are being used in the function to pass the information from the main program to the function. Okay, so what are arguments? Can anyone tell me? Tell me, what are functions here?
Hello, hello. Hello. Can anyone tell me Yes, what are we can functions hear here? you. I had asked a question. No one has answered this. What are functions here? They are nothing. They are just the variables which are used to transfer the information from the main program to the function for being processed. Because what does function do? They carry out certain operation, okay, on the data that we pass. So they are the carriers of data from main program to the function. So they are called arguments, okay. So arguments are specified after the function name inside the parenthesis. We can add as many arguments as we want, just separate them with a comma. An example, my function fname, okay. Then print fname refness, okay. ml refness, tobias refness, linus refness, okay. This will be printed when we call this function here. So arguments are often shortened to args in Python documentation, okay. Now term parameter or argument, like in firstly I had told you about parameter. In the function definition I told you about parameter, but now I'm telling about telling you about a new term called argument. Though they both mean the same itself, okay, they are used for the same purpose, information passing information into a function, okay, but they are different things. From a function parameter, from the eye of a function, suppose you are a function, then a parameter will be a variable listed inside the parenthesis of the function definition. It will be called as a parameter, and the argument will be the value that is being sent to the function. So what is an argument? Values that are stored by parameters. And what are parameters? Variables that carry the data from main function to the function, okay. Is it clear till here? Then comes number of arguments. So by default, a function must be called with correct number of arguments. Means if your function expects only two arguments, like for example, will be sum of two numbers, it expects two variables a and b. We have to call the function with two arguments only, not more, not less. Okay. Is it clear till here? Like an example, def my function f name l name. Okay. Then it prints first name plus last name with a space here. So ml refness. Okay. So if we try to call a function with the lesser number of arguments or more number of arguments than specified in the function parameter, it will result in an error. Clear till here, or having any difference? Having any doubts till here? Hello? Hello? Yes, sir. Yeah, please go on. Hello? I think someone had any doubt. If you have any doubt, please you can say it right now itself. Okay, no doubt then. Then I will tell you about another thing called as default arguments. No, default. What are default arguments? Here, what we are doing is, suppose our function is written here as fname or lname, or what we are doing. Suppose there is a function def sum in brackets a comma b. But what happens, by mistake the user gives only one input, then so what will happen?
automatically it will result in an error. So what we can do is we can also create default arguments, like we can give b an initial value itself. So if the user forgets to initialize b while calling the function, means something like this. Just look at the screen here. Wait 1 second, just will load. Okay, just ignore the above part. So I'm writing here def sum in bracket a comma b here. Okay, a comma b here. Let me increase the size here. Okay, then what is happening? Return, not return itself, just print in brackets a plus b. Okay, simply two things we are doing. But what if user here he forgets to initialize this? What if when we call this sum function here, user will only give a as comma 20 itself? This will obviously result in an error because it requires two parameters. We had studied it. It requires only two parameters, mandatory, not more, not less. So what we can do, we can initialize something like this. Okay, so let's run this command right now. Wait. Let's erase it while here. Run again. See, so if user enters only one value here, the b automatically gets initialized at 10. Okay, so it will not result in an error. These are called as default arguments. Okay, so, or what if user initializes here as two arguments here, then 50, the 30 automatic, the value of b, which is 10, automatically gets replaced by 30. So this is known as default arguments. So this is the one thing which was not mentioned in this PDF here, which I had to tell you about. Okay, so next comes arbitrary arguments. Okay, what are arbitrary arguments? These are the arguments which are used when we don't know how many arguments will be required exactly while writing the functions. Okay, means suppose if you are writing or working on a very big large project, you are not sure of how many arguments to write in the function. So what you will do, you will create a tuple of arguments. Okay, you will simply create a tuple of arguments, which will store as many arguments as passed when the function will be called. That all the values that will be passed when the function will be called, they all will be stored in a tuple here. Okay, remember tuple is a data structure, and all the functions, all the values from the tuple will be stored there in this tuple here. Means what I'm telling here, instead of initializing variables for each variable for a single data value while writing the function parameter, what you are doing, you are creating a tuple of function parameters which will store as many arguments as passed during the function call. Okay, an example, def my function star kids. So here I have entered 3 kids, so the youngest kid is kids at index number 2. So output will be Tobias, which will be Linus. Not Tobias, will be Linus, because 0, 1 and 2. Okay, so now in the same program itself, if we write more than the Linus, like some more arguments like Max, Ben and all, like 6-7 names, still the output will be same itself. We will get an output as Linus and there will not be any error. Okay,
So this is the use of arbitrary arguments, means when these are used in cases when we don't know how many arguments to write in the Python program. Okay, then we instead of writing the number too many variables, we simply use a tuple of arguments. We simply define a tuple which will store as many arguments as it wants directly in it. Is it clear till here? Is it clear, or still having any doubts? Hello, hello, is it clear? Yes, sir, clear. Oh, okay, everyone. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then next thing, keyword arguments. So what are keyword arguments? Remember one more thing, like I had said, the number of arguments matter. Like I had said just 5 minutes back, the number of arguments that we are declaring in the function call should be exactly same as in the function parameter. So one more important point, their order should be the same as well. Order, by order I am meaning like each whatever, like the order in which we are defining the variables in the function parameter. Okay, like I'm defining first a integer value, then a float value, then a string. Similarly, the same thing, same order, should call the function as well. Means while calling the function, our first argument should be int, our second argument should be float, our third argument should be string. It's mandatory, otherwise again we will get an error. So to handle this mistake, like here are only 3 arguments are there, so not much trouble will be there. But what if we have a tuple of arguments or some 5 or 6 different tuple of arguments? Then we might mismatch the order. So what to do in that case? In that case, keyword arguments come to the rescue. Okay, means here like we are defining def my child, child 3, child 2, child 1. Then what we can do, simply we can use the exact parameters that was defined in the function definition as and the arguments like this here. Like while calling, we can simply call the function as my function in brackets, the parameter name and their value, the parameter name and their argument, the parameter name and their argument. Like that format we can call them, and this prevents us to overcome the problem of order of arguments. Okay, so here see, it was initialized as child 3, child 2, child 1, but it is passed as child 1, child 2, child 3. But since all of these are parameters linked to each other, all these parameters are linked to their arguments respectively, it won't give us any error. Is it clear till here? Is it clear till here? Then 2 minutes break, I'm coming for water. Okay. Yes, is it clear, or do you have any doubts still here? Please, if you have Sir, any doubts, can you repeat yeah, again sure. keyword arguments? Yeah, sure. Like I had told you, while initializing a function, the number of arguments should be constant. Like whatever number of arguments you had passed, the same number of arguments should be in the function call itself. But one thing that I did not told you was the order in which the arguments have been written in the function definition. The order, like here, see, child 3, child 2, child 1, it has been written. Okay, the order in which they have been written. Like suppose child 3 will take an integer value, is supposed to take an integer value just for a case. Okay, the child 2 should take an
floating point value and child 1 should take a string value. But what we are giving here, and then just rub this statement, just visualize what I am saying. I am writing here my function in brackets ml first, then number 3, and then 4.5. So what will happen? 4.5 will go in child 1, which is supposed to take string. 3 will go in child 2, which is supposed to take floating point, and ml will go in child 3, which is supposed to take integer value. So all these values will get mixed up, and this will result in an error. So that is why keyword arguments came to the rescue, which helped us as once we have defined the function, while calling the function we can instead of writing just the arguments, what we can do, we can write the parameters which were defined in the function definition and initialize them with the arguments directly in the function call itself. Like हिंदी में अगर इसको बोलें तो यहाँ पर हमने फंक्शन डेफिनेशन में जो जो वेरिएबल्स का यूज किया, उन्हीं वेरिएबल्स को हम लोग फंक्शन को कॉल करते वक्त भी यूज कर सकते हैं, और ऐसा यूज कर रहे हैं कि हम उन वेरिएबल्स के साथ साथ उनके वैल्यूज को भी साथ में इनिशियलाइज कर दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने चाइल्ड 3, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 1 लिखा, लेकिन हमने जिस को जो वेरिएबल देना था, लाइक चाइल्ड 3 में हम चाइल्ड 1 में हम चाहते थे एमएल चले जाए, तो चाइल्ड 1 को हमने एमएल से इनिशियलाइज कर दिया. चाइल्ड 2 में चाहते थे टोबियास चले जाए, तो चाइल्ड 2 को टोबियास से इनिशियलाइज कर दिया, और चाइल्ड 3 में लीनस जाना था तो चाइल्ड 3 में लीनस से इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, इससे हम लोग को बेनिफिट ये हो रहा है कि जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन कॉल में लिख रहे हैं, हम उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने फंक्शन कॉल में. सॉरी, गलत बोल दिए. जो भी हम वेरिएबल नेम हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त लिख रहे हैं, हम उन्हीं वेरिएबल नेम को डायरेक्टली अपने फंक्शन को कॉल करते वक्त भी लिखेंगे, और उन्हें जिस वेरिएबल को जो वैल्यू देना चाहते हैं हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं फंक्शन कॉल में ही. अब क्लियर हो गया? हेलो, यस सर. सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर, नाउ क्लियर. यस सर. यस सर. ठीक है, तो अब आता है आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग क्वार्क. ठीक है, अब ये क्या होता है? जब हम लोग को ये पता नहीं हो कि कितने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी जाएंगे हम लोग, यहाँ पर हमें तो पता नहीं था कि किस ऑर्डर में जाएगा. ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हम लोग को बताया कि किस ऑर्डर में हम लोग को जाएगा, ये पता नहीं है. ठीक है, लेकिन आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है? ये ऊपर वाले आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, जो भी हम लोग 2 टॉपिक पढ़े, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये उन दोनों का मिक्सचर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ द नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट अगर अननोन है, जैसे यहाँ पे हम लोग को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमने लिखा था, अगर ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में भी हम लोग कितना नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लिखेंगे ये भी हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग उस जगह क्वार्क यूज करते हैं. और क्वार्क कैसे इनिशियलाइज करते हैं? डबल स्टार से. एग्जांपल देखेंगे, डेफ माई फंक्शन स्टार स्टार किड एक क्वार्क है. ठीक है, हिज लास्ट नेम इज किड डॉट एल नेम. ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या लिखा? ये किड एक क्वार्क है, ये कितना नंबर भी वैल्यूज ले सकता है. मतलब इसमें ये जो क्वार्क किड है, ये पहले तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन पॉइंट सुनिएगा इस किड के बारे में. ये पहले तो इसमें कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी जा सकते हैं, मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट्स हम लोग चाहे तो 10 डाले, 20 डाले, 2 डाले, 5 डाले, कितना भी डाल सकते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इसमें आर्ग्यूमेंट्स डालने का ऑर्डर भी मैटर नहीं करेगा. किस ऑर्डर में हम लोग डाल रहे हैं आर्ग्यूमेंट, ये भी मैटर नहीं करेगा. ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो क्वार्क क्लियर हो गया सबको? यस सर. क्वार्क सबको क्लियर हो गया? यस सर. ठीक है, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और डिफॉल्ट और ये कीवर्ड आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है. ये 4 जो पॉइंट्स हमने अभी पढ़े हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे.
ठीक है, तो इन सब पे ध्यान दीजिएगा। अब डिफॉल्ट के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए थे, थोड़ा पहले मुझे लगा कि इसमें दिया हुआ नहीं है, तो वो चीज आपको हम पहले बता दिए थे, डिफॉल्ट वाला। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट में हम लोग लिस्ट भी पास कर सकते हैं एक फंक्शन में। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है, फ्रूट्स नाम का हमारा हमने एक लिस्ट लिखा। किसी को कोई डाउट हुआ क्या? प्लीज एक्सप्लेन आर्बिट्ररी वंस मोर टाइम। कौन सा, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट या आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, दोनों बताइए, उसमें से कौन सा एक्सप्लेन करना है? आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं, सिर्फ आपको पता, सब ये तभी यूज करते हैं हम लोग को पता नहीं होता है कि कितना आर्ग्यूमेंट्स पास करना है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पास करना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया तो क्लियर लिखिए चैट बॉक्स में। Number of argument that is to be passed is not known to the user। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, लाइक जो फंक्शन, मैंने बोला कि फंक्शन डेफिनेशन में जिस ऑर्डर में, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा था, ये a, b इक्वल टू 10 लिखा था, तो अगर मैं 20 यहाँ लिख रहा हूँ और 30 यहाँ लिख रहा हूँ, तो 20 जाएगा a में और 30 जा रहा है b में। और अगर मैं 30 यहाँ लिखूंगा 20 लिखूंगा और सोचूंगा कि ये जो 20 मैं इधर लिखा हूँ 30 के जगह पर, ये 20 चला जाए ए में और ये 30 चला जाए बी में, क्रॉस करके एक दूसरे को, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में वो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 20 जाएगा ए में और 30 जाएगा बी में। और अगर मैं यहाँ ये लिख दूं इस तरफ से नीचे, सम इक्वल्स सम ब्रैकेट में 30, 20, तो 20 यहाँ बी में चला जाएगा और 30 ए में चला जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट तो बताया कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैन गो इनसाइड अ क्वार्क। लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट बताया पॉइंट में हमें पता चल रहा है कि even their arguments also does not matter the order in which they are written। हमें बस उसको उसकी वेरिएबल नेम के साथ लिख देना है। अब वो किसी भी ऑर्डर में लिखे, कहीं भी लिखे हैं, हम फंक्शन कॉल में, फंक्शन कॉल के स्टार्टिंग में लिखे, बीच में लिखे, एंड में लिखे, कहीं भी लिखे, हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा एरर फ्री होकर के। क्लियर हो गया अब ये पॉइंट? सेकेंड वाला पॉइंट क्लियर हो गया या दिक्कत है अभी भी? अगर क्लियर हो गया तो लिखिए जल्दी से, नहीं तो फिर आगे फिर से बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो। ठीक है, तो लिस्ट हम लोग फंक्शन में पास कर सकते हैं अगर ये वेरिएबल है, क्योंकि पाइथन हम लोग वेरिएबल का टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, तो किसी भी वेरिएबल में हम लोग कोई भी टाइप का वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे फूड हमने लिखा और माय फंक्शन में लिखा फ्रूट्स, तो ये फूड फ्रूट्स बन गया। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल सेम असाइनमेंट वैल्यू की तरह काम करता है। जैसे हम लोग असाइनमेंट लिखते हैं ना, a इक्वल टू बी लिखते हैं, तो क्या होता है, बी जिस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है वैसा ही a बन जाता है। तो फ्रूट्स क्या है, एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, तो हम यहाँ पे फ्रूट्स को फूड लिख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, सिंपली फूड इज इक्वल टू फ्रूट्स बन जा रहा है। तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा, फ्रूट्स एक सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप है, वो एक लिस्ट है, तो फूड भी ऑटोमेटिकली एक लिस्ट बन जाएगा, सीक्वेंस डेटा टाइप बन जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? रिटर्न वैल्यू में आते हैं। ठीक है, टू रिटर्न अ वैल्यू वी यूज रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब कि कोई भी वैल्यू जो कोई भी जो हम लोग फंक्शन में, जो हम लोग वैल्यूज में लाए हैं, या कोई भी हम लोग जो वैल्यू पास हुआ उसमें किसी भी तरह का ऑपरेशन किए हैं, अगर हम चाहते हैं वो ऑपरेशन के बाद का रिजल्ट मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो, तो उस जगह हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे। फिर आता है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट वही सेम चीज है,
कोई डिफरेंस नहीं। क्या होता है पास्ट स्टेटमेंट? हमारा बस फंक्शन को सिंटैक्टिकली करेक्ट, मतलब फंक्शन का सिंटैक्स को करेक्ट रखने के लिए यूज होता है, वैसे वो और कोई काम नहीं करता है, बस फंक्शन का सिंटैक्स वैलिड रहे, इसीलिए पास्ट स्टेटमेंट यूज किया जाता है, क्योंकि फंक्शन एम्प्टी नहीं रह सकता है। ठीक है, फंक्शन का जो डेफिनेशन हम लोग कोई भी फंक्शन का लिख रहे हैं, वो डेफिनेशन फंक्शन लिखने के बाद अगला स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा हम लोग को। जैसे इफ लिखने के बाद या फॉर लूप लिखने के बाद या व्हाइल लूप लिखने के बाद कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिखना मैंडेटरी है, उसी तरह फंक्शन लिखने के बाद भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिखना मैंडेटरी है। तो अगर हम लोग को कुछ नहीं लिखना है तो उस जगह सिंपली एक पास लिख देंगे, ताकि वो फंक्शन का सिंटैक्स का जो इंटीग्रिटी है वो बना रहे। ठीक है, अब आते हैं रिकर्शन पे। रिकर्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, फंक्शन के अंदर ही। एग्जांपल देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ ट्राई रिकर्शन, हमने एक फंक्शन को लिखा, ठीक है, ट्राई रिकर्शन को, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा? इफ k इज ग्रेटर देन 0 रिजल्ट इक्वल टू k प्लस ट्राई रिकर्शन। ये फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर रहा है, देखिए ये फंक्शन के अंदर ही ये खुद को कॉल कर ले रहा है फिर से, तो यही हो जाता है रिकर्शन। वही ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया जाए उसको रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया रिकर्शन, या रिकर्शन में दिक्कत है? क्लियर है सर रिकर्शन। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर अक्षय ठाकुर एक है जो मेरा पेड कोर्स है हम लोग का किक्स बूट कैंप पाइथन का, वो ज्वाइन किए हुए हो। तो अगर किसी को रिव्यू लेना है कि पेड कोर्स में कैसा पढ़ाई होता है, क्योंकि नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है जुलाई 2 से, किसी को अगर रिव्यू चाहिए तो अक्षय ठाकुर से बात कर सकता है। अक्षय एक बार पेड कोर्स के बारे में बता दो कैसे चल रहा है वहाँ पे। हेलो अक्षय। यस सर। यस सर। हाँ, पेड कोर्स हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो भी अगर आप किसी को बताना चाहें तो बता सकते हैं। अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे से समझाते हैं, वहाँ पे तो डिटेल में समझाते हैं और करते भी हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, बनाते हैं। अभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट आज एक स्टार्ट हो जाएगा शाम के वक्त। वो मेरा थोड़ा प्लेसमेंट एग्जाम्स चल रहा था, इसलिए हम 2-3 दिन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो आज प्रोजेक्ट करेंगे ईडीए पर हम लोग। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोग को, प्रैक्टिकल और सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको एश्योर कर दे रहा हूँ कि सिर्फ थ्योरी जान लेने से या थ्योरी रट लेने से कुछ नहीं होना है। या फिर आप सिर्फ अगर सर्टिफिकेट के लिए आए हैं यहाँ पे, तो ये सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल नल है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, ये 0 वैल्यू आपका आएगा सीवी पर। सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं है आज के रिक्रूटर्स के सामने। अगर आप किसी एमएनसी का एम कर रहे हैं तो आपका स्किल डेवलपमेंट देखता है, वो सर्टिफिकेट्स नहीं। वो स्किल डेवलपमेंट देखेंगे, आपका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूशन देखेंगे, आप ओपन सोर्स में क्या काम करते हैं क्या नहीं, आपका अचीवमेंट्स क्या है। और अचीवमेंट मतलब सर्टिफिकेशन नहीं, सर्टिफिकेट गेन करना एक अचीवमेंट नहीं होता है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ ये चीज़, पॉइंट ये बिल्कुल ही अचीवमेंट में नहीं है। अचीवमेंट मतलब आप सोशल गुड क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 13+ हैकाथॉन्स में मेंटर रह चुका हूँ, इंटरनेशनल, नेशनल में नहीं, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में मेंटर कर चुका हूँ। 3+ हैकाथॉन्स में एज जज रहा हूँ, इंक्लूडिंग ऐसे हैकाथॉन जिसको गिटहब ने स्पॉन्सर किया है, माइक्रोसॉफ्ट तक ने स्पॉन्सर करा है, उन हैकाथॉन्स में मैंने जज रहा हूँ। ठीक है, अभी अपकमिंग एक हैकाथॉन हुआ था हाइड्रेंशिया हैक्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में, ठीक है, यूएसएफ में हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में हुआ था ये हैकाथॉन। वहाँ मैंने पहला अपना वर्कशॉप दिया था गिट और गिटहब पे। तो वो चीज़ें मैटर करती है, आप सोशल गुड क्या करते हैं। गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड हुआ हाल ही में, उसमें मैं मेंटर था कॉइन शिफ्ट इमेजिंग बॉक्स में। डेव स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड था, उसमें भी मैं प्रोजेक्ट मेंटेनर था। तो वो चीज़ें मैटर करती है एज अचीवमेंट्स आपका। ये सर्टिफिकेशन को आप अचीवमेंट में डालेंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये सर्टिफिकेशन के अलग सेक्शन बनता है रिज्यूम में सर्टिफिकेशन का। तो ओपन सोर्स के बारे में भी मैं अपने गाइड करता हूँ, जैसे इन लोग का 5th सेशन में मैंने इन लोग को ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट करना होता है वो सब भी बताया था।
तो वो सब चीज भी आप लोग देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्डा फंक्शन को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ये ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। तो भाई ऐसा फंक्शन लिखा क्यों गया जिसका कोई नाम ना हो? सोचिए कि लैम्डा फंक्शन इसलिए लिखा गया क्योंकि तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है और इसमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट होता है, इसलिए तुरंत एग्जीक्यूट होता है। बेनिफिट क्या है इसका? सीक्वेंस डेटा टाइप को मॉडिफाई करना या सीक्वेंस डेटा टाइप को फिल्टर करना, मतलब कि लिस्ट, टपल और ये सब को, इसमें से एलिमेंट्स को फिल्टर आउट करने में या इन सब में से एलिमेंट को, इस सब के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने में ये हमें हेल्प करता है, इसलिए इसका लैम्डा फंक्शन लिखा गया था। लास्ट क्लास किसी ने पूछा था लैम्डा फंक्शन के साथ मैप ये सब का यूज है, मैप फंक्शन का यूज किसी ने पूछा था मेरे से, मुझे याद, इसीलिए लैम्डा फंक्शन का लिखा ही गया था, क्योंकि लैम्डा फंक्शन मैप और फिल्टर जो फंक्शंस हैं उनके साथ काफी अच्छे से बैठ जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं लैम्डा फंक्शन का। इसमें हम लोग लैम्डा फंक्शन एक ऐसा लैम्डा फंक्शन है जो कि आप अगर a में कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो वो उसमें 10 ऐड करके आपको देगा। तो उसको कैसे लिखते हैं? x, ये वो वेरिएबल है जहां जो लैम्डा फंक्शन को का ऑब्जेक्ट है। ये लैम्डा फंक्शन का ऑब्जेक्ट मतलब कि कुछ मत समझिए अभी, ऑब्जेक्ट अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफी। मतलब सिर्फ समझिए कि ये x एक ऐसा वेरिएबल है जो उसको रेफरेंस कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा है जहां पे ये लैम्डा फंक्शन स्टोर्ड है, ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए ये x है, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन में वेरिएबल हमारा आर्ग्यूमेंट से एक आर्ग्यूमेंट है a और हमारा एक्सप्रेशन क्या है a+10, ठीक है। बस इतना ही सा लैम्डा फंक्शन है। क्या है? x वो वेरिएबल, अब फिर से इसको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं हम। x वो वेरिएबल है जो लैम्डा फंक्शन के मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा है कि लैम्डा फंक्शन किस मेमोरी लोकेशन पर एक्सेसिबल हो रहा है। a हमारा लैम्डा फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है और a+10 जो एक्सप्रेशन है, मतलब कि अगर हम एक में लैम्डा फंक्शन को में वैल्यू हम पास करेंगे 10 तो हमें आउटपुट मिलेगा 20, ठीक है। तो अब लैम्डा फंक्शन तो बन गया, तो इसे एक्सेस कैसे करेंगे? अगर हम सिंपली प्रिंट एक्स कर देंगे तो हमें सिर्फ वो मेमोरी लोकेशन का जगह मिल जाएगा जहां पर लैम्डा फंक्शन है। फिर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे लैम्डा फंक्शन को? अगला सवाल हमारे पास आता है। x के साथ साथ हमें प्रिंट x के साथ x में हमें एक वैल्यू भी तो देनी होगी, क्योंकि लैम्डा फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट है a, ठीक है। तो हम x के साथ हम एक वैल्यू देंगे तो ये वैल्यू चला जाएगा a में और ये एक्सप्रेशन बन के हमें रिजल्ट दे देगा और ये रिजल्ट वापस स्टोर हो जाएगा x में और फिर ये x प्रिंट हो जाएगा। वरना ये x सिर्फ मेमोरी स्टोर करेगा जहां पे लैम्डा फंक्शन लिखा गया है, ठीक है। तो जब हम x में 5 दे रहे हैं तो आउटपुट आएगा 15, जब 7 देंगे तो आउटपुट आएगा 17, इसी तरह से। तो इस तरह लैम्डा फंक्शन में हम लोग एक नहीं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन हमारा जो होगा सिर्फ एक लाइन का ही होगा। अब जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है लैम्डा फंक्शन में तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू लैम्डा a कॉमा b कोलॉन a स्टार b। अब हमें करना है लैम्डा फंक्शन में डिवाइड, तो x इक्वल टू लैम्डा a कॉमा b कोलॉन a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। अब इस तरह हमें लैम्डा फंक्शन में करना है a b c तीनों का मल्टीप्लाई, तो लैम्डा a b c कोलॉन a प्लस b, a स्टार b प्लस b स्टार c, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। और एक्सेस कैसे करेंगे? प्रिंट x, फिर ब्रैकेट में जितने आर्ग्यूमेंट्स है उतने आर्ग्यूमेंट्स के वैल्यूज दे देंगे तो ये सारा काम कर जाएगा, ठीक है। लैम्डा फंक्शन क्लियर हो गया अब ये? तो लैम्डा फंक्शन का पावर क्या है, क्यों यूज करते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। क्योंकि ये एनोनिमस फंक्शन है तो इसके हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सर एनोनिमस फंक्शन मींस क्या? उस फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, एनोनिमस। जैसे तो आप इनकॉग्निटो मोड में नेट चलाते हैं तो आपका कोई गूगल आपका कोई हिस्ट्री ट्रैक नहीं कर सकता है, गूगल आपका हिस्ट्री ट्रैक नहीं कर सकता है। आप इनकॉग्निटो मोड में जब भी नेट चलाते हैं तो आपका कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है? नहीं रिकॉर्ड होता है। यस सर। हाँ, तो बस वही चीज है कि आपको आप अनजान आदमी बन जाते हैं, आपका कोई नाम पहचान कुछ नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम पहचान ना हो उसको लैम्डा फंक्शन बोलते हैं।
सिंपल टर्म्स में बोलिए। क्लियर हो गया? तो सर इसके यूज करने के फायदे क्या, मतलब फास्ट हो किसी भी जाता है? फंक्शन के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं ना, एक लाइन का तो फंक्शन है, कहीं भी लिख दीजिए तुरंत लिखा जाएगा, और एक ही स्टेटमेंट है तो एग्जीक्यूट बहुत जल्दी हो जाता है। तो छोटा सा अगर ऑपरेशन कहीं पे वो करना है तो बड़ा फंक्शन क्यों लिखें? फिर क्या होगा, यहाँ से फंक्शन वैल्यू उठा के एक दूसरी मेमोरी लोकेशन में जाके फेंकेगा, वहां पे कुछ प्रोसेसिंग चलेगा तो एक और मेमोरी लोकेशन यूज होगा, वहां से फिर फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा तो रिटर्न होकर के यहाँ आएगा। मतलब एक काम को करने के लिए आप 4 रेलवे स्टेशन पे जा रही हैं, तो यहाँ आपको जाना है ए से बी, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले ए से जाएंगे सी, सी से जाएंगे डी, डी से जाएंगे ई, ई से जाएंगे वापस बी। ये हो रहा है नॉर्मल फंक्शन के साथ। लेकिन लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है, आपको डायरेक्ट ए से उठा के पटक दे रहा है बी पे सीधे, इसीलिए लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। अब क्लियर हो गया? यस सर, नाउ क्लियर। हाँ, तो बस यहाँ मेमोरी बचाने के लिए लैम्डा फंक्शन यूज होता है, मेमोरी और स्पीड के लिए। यहाँ पे तो टाइम का कंस्ट्रेंट है तो आपको बहुत कुछ दिखाते हैं हम लैम्डा फंक्शन का यूज, जैसे टाइम से कंपेयर कर करके। टाइम और स्पीड जैसे आप बोल रहे हैं, मेमोरी का मैं आपको बता रहा हूँ कि मेमोरी कम लगती है, आपका स्पीड एग्जीक्यूशन फास्ट है, तो वो सब कंपेयर करके दिखाते हैं हम आपको कैसे लैम्डा फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करता है मेमोरी और स्पीड वाइज। तो उतना यहाँ पे भी करने का मेरे को परमिशन ही नहीं है, और टाइम भी इतना नहीं है, कवर अप बहुत ज़्यादा करना है क्योंकि अब से मात्र 6 मिनट बच रहा है अभी के सेशन में, और अभी भी बहुत 2-3 फंक्शन और एक्सप्लेन करना है अभी मेरे को। ठीक है, तो ये रहा लैम्डा फंक्शन का डेफिनेशन। ऐसे अगर आपको और जानना है तो आप मेरे से कभी भी आपको हमको मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है उसमें। ओके सर। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग लैम्डा फंक्शन 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, फिल्टर और मैप, जो मैं आपको बता रहा था। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर हम लोग को लिस्ट में से या कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप में से फिल्टर करने के लिए, फिल्टर क्या करता है, छन्नी का काम करता है। छन्नी क्या करता है, चाय वाली छन्नी होती है ना, क्या करता है वो, पत्ती और अदरक को फिल्टर कर देता है और सिर्फ चाय नीचे ग्लास में रख देता है। यस सर। तो वही हमारा काम फिल्टर फंक्शन का है। ये एलिमेंट जो लिस्ट जो सीक्वेंस डेटा टाइप में डेटा स्टोर्ड है, ये उसको फिल्टर कर देता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने लिखा है 1022, एक लिस्ट है, एक टपल है हमारे पास 1022 जिसमें स्टोर्ड है 10, 22, 37, 41, 100, 123 और 29। ठीक है, तो हम यह क्या कर रहे हैं, पहले हम एक ऐसा टपल बना रहे हैं जो सिर्फ ऑड नंबर देगा लिस्ट का, हमको इवन नंबर हमको नहीं चाहिए लिस्ट में। इस टपल में हमको सिर्फ ऑड नंबर ही चाहिए, और वो ऑड नंबर आएगा कहाँ से, किस टपल में से आएगा, ये फर्स्ट वाला टपल में से। हमको एक ऐसा नया टपल चाहिए जो फर्स्ट वाला टपल में जितना एलिमेंट है उसको फिल्टर आउट कर दे। किस बेसिस पर, अगर वो नंबर ऑड है तो उस टपल में स्टोर कर दे, और अगर इवन है तो उसको फेंक दे बाहर। यहाँ पे x मॉडुलस 3 लिखा गया गलती से, वो x मॉडुलस 2 होगा, वो एक एरर हो गया है थोड़ा सा गलती से। ठीक है, तो वो चीज़ बता दे रहे हैं हम आपको फिर से। तो ये कैसे फंक्शन काम कर रहा है, तो पहले टपल फंक्शन है वो क्या कर रहा है, जो फिल्टर हमें देता है बाहर में, किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है, फिल्टर रिटर्न करता है हम लोग को एक तरह का सेट। सेट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि अनऑर्डर्ड होता है, इसमें डेटा घिच-पिच हो जाता है, मतलब लाइक कोई ऑर्डर में नहीं है, कोई कहीं भी फेंका हुआ है सेट में। अगर आप सेट को प्रिंट भी कीजिएगा हर बार 3-4 बार, हर बार आपको डेटा का ऑर्डर अलग अलग मिलेगा। तो फिल्टर और जो मैप है वो आउटपुट देता है हम लोग को सेट के फॉर्म में, वही मैथमेटिकल सेट, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस फिल्टर फंक्शन में 2 प्रॉपर्टी लगता है। किसी को कोई डाउट है क्या? सर कह रहे थे टपल के जगह सेट भी तो लिख सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है आपका, प्लीज थोड़ा सा टाइप कर दिए ना, आवाज नहीं आ रहा है। टपल वी कैन राइट सेट और नॉट, वो सेट ही रिटर्न करता है। फिल्टर जो है फंक्शन वो सेट में ही रिटर्न करता है, लेकिन सेट यूज करने का फायदा ही नहीं है हम लोग को ना,
सेट में आप डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस कर ही नहीं सकते क्योंकि डेटा इसमें रैंडमली स्टोर होता है, कोई ऑर्डर नहीं है। अगर आप प्रिंट भी करने जाइएगा तो आप अगर 5 बार प्रिंट कर रहे हैं तो आपको 5 बार 5 बार में देखिएगा कि हर बार डेटा अलग फॉर्मेट में प्रिंट होगा। इसीलिए सेट कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इसलिए हम सेट आप लोग को बताए भी नहीं है यहाँ पे। नहीं तो बताने में क्या जा रहा था, मुश्किल से 10-15 मिनट और लगता हमको बताने में। उस दिन तो टाइम भी बच गया था मेरे पास, लेकिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं है उसका लिटरली। वो सिर्फ जो हायर ऑर्डर रिसर्च लोग जो लोग करते हैं ना उन लोग के लिए काम आता है सेट का। तो अभी हम लोग को काम ही नहीं उसका, इसलिए नहीं बताया हम तो ओपन सोर्स में काम करते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मेरा कोलैब है तो इसलिए हमको पढ़ना था तो पढ़ लिए हम, ठीक है। तो फिल्टर फंक्शन का 2 प्रॉपर्टी चाहिए उसको। पहला प्रॉपर्टी एक फंक्शन चाहिए उसको जो जिस बेसिस पे फिल्टर आउट करेगा एलिमेंट को, ठीक है। तो फंक्शन अगर बाहर की तरफ से लिखने जाएंगे तो वही अगेन होगा। एग्जीक्यूशन स्लो होगा क्योंकि पहले यहाँ से डेटा लेगा ये, फिर डेटा बाहर भेजेगा, फिर बाहर डेटा एक्सेप्ट करेगा, फिर डेटा वो फिल्टर करेगा, फिर डेटा यहाँ भेजेगा, फिर ये चेक करेगा। तो उतना नहीं करना था हम लोग को, सीधे हम लोग लैम्डा फंक्शन लिख दिए। तो लैम्डा फंक्शन लिख दिए तो क्या हो गया, लैम्डा फंक्शन x। अब ये x कहाँ से आएगा, LST से आएगा। LST क्या है, ये डेटा है। तो इसमें से एक एक करके डेटा निकलेगा जो x में स्टोर होगा। अब x में स्टोर होगा तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो करेगा। अब एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट करेगा, अगर यहाँ तो ऑड नंबर के लिए है पहले तो, ठीक है। तो यहाँ x मॉड्यूलस 3 लिखा हुआ है तो ये गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट होना चाहिए x मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, तब ये ऑड नंबर होगा। स्टेटमेंट ये होना चाहिए। तो x मॉड्यूलस 2 हम लोग नॉट इक्वल टू 0। तो जब 10 इसमें से निकला, 10 x में स्टोर हुआ, 10 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 देता है तो इसको बाहर फेंक देगा वो। फिर 22 के साथ भी वही होगा, बाहर फेंक देगा। 37 में क्या होगा, 10 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0। हाँ ये रिमाइंडर 1 दे देगा हम लोग को 2 से डिवाइड करने पर। तो कंडीशन ट्रू है तो ये 37 इस ऑड लिस्ट में स्टोर हो जाएगा टपल के फॉर्मेट में। 41 के साथ भी वही होगा, 123 के साथ भी वही होगा, 29 के साथ भी वही होगा। और बाकी 100, 22 और 10 एलिमेंट के साथ नहीं होगा ये चीज़, और ये लोग बाहर फेंका जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। तो ये है फिल्टर फंक्शन का काम। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मैप। मैप क्या करता है, जैसे हम लोग फिल्टर आउट कर लिया एलिमेंट को, मैप क्या करेगा, सारा एलिमेंट को लेगा और सारा एलिमेंट को एक साथ मॉडिफाई कर देगा। जैसे कि यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, 10, 20, 30, 40, 60 लिए एलिमेंट्स। अब इन सब को मॉडिफाई क्या कर रहे हैं हम लोग, इन सब का स्क्वायर करके हम लोग नया लिस्ट में स्टोर कर देंगे। मतलब 10 का हो जाएगा 100, 20 का हो जाएगा 400, 30 का 900, 40 का 1600, 50 का 2500 और 60 का 3600। ये स्टोर हो जाएगा मैप के थ्रू। मैप भी फिल्टर ही के जैसा काम करेगा, एक लैम्डा फंक्शन और एक डेटा सोर्स की डेटा कहाँ से लेना है और उस पर किस टाइप का ऑपरेशन करना है, तो वो लैम्डा फंक्शन से। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया। फिल्टर और मैप कैसे यूज करते हैं और लैम्डा फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये सब सर इन दोनों में फिल्टर छानने का काम कर रहा है, ठीक है, और मैप क्या कर रहा है, सारा को ले रहा है और सारे पर ही एक तरह का ऑपरेशन चला दे रहा है। पोस्ट ऑफिस गई हैं आप, पोस्ट ऑफिस का एग्जीक्यूशन पता है ना क्या होता है, पोस्ट ऑफिस कैसे एग्जीक्यूट करता है, सारे लेटर्स पे स्टैंप लगाता है, ठीक है। तो मैप वही कर रहा है, सारे लेटर पे स्टैंप लगा रहा है, सारे डेटा पे एक एक स्टैंप लगाते जा रहा है, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में दूसरा फंक्शन क्या होता है, सॉर्टिंग करना, ठीक है, डेटा को मतलब लेटर को सॉर्ट करना। तो वो फिल्टर फंक्शन लेटर को सॉर्ट कर रहा है, वो डेटा को सॉर्ट कर रहा है फिल्टर फंक्शन। समझ में आ गया कैसे? सर जो अगर हम क्या जो फिल्टर में हम लोग कंडीशन लगाएं, अगर वो सेम कंडीशन मैप फंक्शन में लगा दे तो वो क्या करेगा तब? कुछ नहीं करेगा, वो मैप फंक्शन मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। हम लोग वहां क्यों कंडीशन लगाएंगे ऐसा, वो मैप फंक्शन मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है एलिमेंट को, और वो सारे एलिमेंट को मॉडिफाई करता है, इसीलिए मैप फंक्शन लिखा गया है। तो वहां पे हम लोग लगाएंगे ही क्यों, बताइए आप। सर अगर लगा दिए तो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। कुछ नहीं होगा, फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो स्टेटस स्टोर कर देगा, और कुछ क्या होगा वो, मतलब अगर आप लगा दी x मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो वो क्या करेगा, आपका जो आपका ऑड नंबर होगा उसकी जगह पे 0 स्टोर कर देगा, जो इवन नंबर होगा उसके, जो ऑड नंबर होगा उसकी जगह 1 स्टोर कर देगा, जो इवन नंबर होगा उस जगह 0 स्टोर कर देगा वो।
और क्या करेगा वो फंक्शन? अगर आप ऑड नंबर वाला लगा दी लिस्ट तो ऑड की जगह 0 स्टोर कर देगा, इवन की जगह इवन स्टोर कर 0, ऑड की जगह 1 स्टोर करेगा, इवन की जगह 0 स्टोर कर देगा। वो रिमाइंडर ही स्टोर करेगा उसका, और कुछ नहीं करेगा वो। यस सर, हाँ समझ गए। ठीक है, मतलब आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं। फिल्टर फंक्शन क्या कर रहा है? पोस्ट ऑफिस का सॉर्टिंग का काम फिल्टर फंक्शन करता है। और पोस्ट ऑफिस में जो सब स्टैंप पे जो क्या होता है, वो स्टैंप पे मार्क लगाना जो होता है, जो भी यस सर। वो काम कर रहा है मैप हमारा, सभी लेटर्स पे मार्क लगा रहा है वो। रियल लाइफ एग्जांपल है, आराम से समझ में आ गया होगा ये चीज तो। यस सर, अब दिक्कत है? क्लियर हो गया। आ गया ना? हाँ ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्लास के बारे में जानना चाहता है, पेड क्लास के बारे में, तो वो रुक सकता है, और जिसको डाउट नहीं है वो लोग जा सकता है, या पेड क्लास के बारे में जो लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं वो लोग जा सकता है।